بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے لے کر رہی ہوں بالکل نیو نہایت ہی لذیذ میٹھے کی ریسپیز۔ یہ میٹھا کھانے میں بے حد مزیدار ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے آپ چولہے پر کڑاہی یا کوئی بھی برتن رکھیں۔ اس میں آپ آدھا لیٹر دودھ ڈال کر اس کو گرم کر لیں۔ دودھ کو آپ بوائل کریں، ساتھ میں آپ الائچی 2 اور دال چینی 1 انچ کا ٹکڑا ڈال لیں۔ مسالہ ڈالنے کے بعد اب آپ اس میں بہترین ذائقے کے لیے نمک چٹکی بھر شامل کر لیں اور 1 سے 2 چمچ چینی شامل کر لیں۔ اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند نہیں تو آپ چینی جو ہے وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جب دودھ اچھی طرح بوائل ہو جائے، 2-3 دفعہ اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو آپ اس میں چاول کا آٹا شامل کریں۔ 1 کپ چاول کا آٹا ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ آپ اس کو اچھی طرح پکنے دیں یہاں تک کہ یہ گہرا ہو جائے اور چاول کا آٹا جو ہے وہ حلوے کی طرح بن جائے، نرم ہو جائے۔ 2-3 منٹ تک آپ اس کو پکنے دیں۔ ساتھ میں آپ چٹکی بھر فوڈ کلر بھی دودھ میں شامل کر لیں۔ اس سے اس کے کلر میں اور خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جب یہ دودھ اچھی طرح خشک ہو جائے تو آپ اس کو اتار کر کسی بھی کھلے برتن میں پلیٹ میں رکھ کر اس کو آپ ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس کے اندر سے آپ دال چینی کے ٹکڑے اور الائچی کے چھلکے جو ہیں وہ نکال کر ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اس کو نارمل حالت میں ہونے دیں۔ اتنی دیر میں ہم اس کی برائی کے لیے امیزہ تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گڑ لیں آدھا کپ، اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں۔ ساتھ میں آپ تھوڑا سا پانی شامل کر لیں۔ پانی ڈال کر آپ گڑ کو اچھی طرح مکس کریں۔ ان دونوں چیزوں کو آپ مکس کریں، چمچ چلائیں یہاں تک کہ گڑ پگھل کر چاشنی کی شکل میں بن جائے۔ گڑ کی گلٹیوں کو اچھی طرح پگھلنے دیں۔ جب گڑ جو ہے وہ مکمل طور پر پگھل جائے تو پھر آپ اس میں ناریل شامل کریں۔ اس کو آپ ڈال کر مکس کر لیں، چمچ لائیں اور دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب یہ اچھی طرح تیار ہو جائے، گڑ خشک ہو جائے تو آپ اس کو اتار لیں۔ اس کو آپ زیادہ دیر تک بھونیں نہیں، اس طرح آپ 1-2 منٹ تک اس کو چمچ چلانے کے بعد جب اس طرح سے یہ تیار ہو جائے تو اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ دیکھیں چاول کا آٹا جو ہے وہ تھوڑا نارمل حالت میں ہو چکا ہے۔ آپ اس کو گوندھ لیں کیونکہ یہ ابھی نرم ہے، اس لیے آپ اس کو ہاتھ سے نہیں، اس کو آپ گلاس یا کسی بھی چیز سے اچھی طرح گوندیں۔ جس چیز سے آپ نے پہلے گوندنا ہے اس کے اوپر آپ گیجا اور لگا لیں تاکہ یہ چپکے نہیں۔ اس کے بعد جب یہ نارمل حالت میں ہو جائے تو پھر آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح گوندھ کے تیار کریں۔ اس مرحلے پر خیال رکھیں کہ آپ نے جتنا اچھا آپ اس کو گوندھ کے تیار کریں گے اتنے ہی ریسپیز جو ہے وہ بہترین اور خوبصورت بنیں گی۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح گوندیں گے نہیں تو بعد میں ریسپیز پہ دراڑیں آئیں گی اور ریسپیز جو ہے وہ بہترین تیار نہیں ہوگی۔ اس کو گوندنے کے بعد اب آپ اس کو پیڑوں میں تقسیم کر لیں۔ اس کا 1 یا 2 پیڑا بنا لیں۔ اس کو آپ بیل لیں۔ بیلنے سے پہلے آپ اس کے گرد خشک آٹا لگا لیں تاکہ یہ چپکے نہیں۔ اب آپ اس کو بیل لیں۔ بیلتے ہوئے خیال رہے کہ آپ نے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ موٹا رکھنا ہے۔ اس کی آپ نارمل سی تہہ جو ہے وہ بیل کے تیار کریں۔ اب آپ کوئی بھی ڈبے کا درمیانے سائز کا ڈھکن لیں یا آپ گلاس لے لیں یا اس طرح کا کوئی بھی سانچہ لے لیں، اس کے اوپر رکھ کر آپ اس کو دبائیں۔ اس طرح سے آپ اس کی گول سی روٹیاں جو ہیں وہ اس کے اندر سے نکال لیں۔ اوپر سے جو ایکسٹرا آٹا بچا ہے اس کو آپ دوبارہ سے اکٹھا کریں اور پھر اس کو بیل کر آپ اس کے اندر سے روٹیاں نکال لیں۔ ان روٹیوں کو آپ ایک سائڈ پر کریں۔ آپ دوبارہ سے آپ تھوڑا سا آٹا یا دوبارہ پیڑا لیں، اس کو آپ بیل لیں۔ اس کو آپ بیل کے تھوڑا پتلا کریں۔ اس کو آپ پہلی روٹی کی نسبت تھوڑا پتلا رکھ کے بیل لیں اور پھر آپ اس کے
गोल सा इस तरह का सांचा, या आप कोई भी इससे छोटा डिब्बी का ढक्कन, या आप कोई भी इस तरह की गोल सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप ऊपर रख कर दबाएँ और इसके आप छोटी छोटी रोटियां बना लें। देखें, ये पहली रोटी की निस्बत तीसरे और चौथे हिस्से में है। इस तरह से आप इसकी छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो निकाल लें। इनको निकाल कर एक साइड पर रखें और इसी तरह बचे हुए आटे को भी फेंकें नहीं, इसको आप इकट्ठा करके दोबारा से बेल लें। अब आप एक छोटी सी रोटी लें, इसको आप काट कर इसके छोटी छोटी पत्तियां तैयार कर लें। एक छोटी रोटी जो है इससे आपने पत्तियां तैयार करनी हैं। इसके लिए आप इस तरह का सांचा लें या कोई भी चीज़ ले लें। इससे आप इससे छोटी छोटी पत्तियां जो हैं वो तैयार करें। इस पत्तियों को हम बाद में डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आप डिज़ाइनिंग बनाने से पहले मैदा लें, 1 चम्मच मैदा लें। इसमें आप 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसका नॉर्मल सा अमेज़ा तैयार कर लें। इसको हम डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह का अमेज़ा तैयार करने के बाद अब आप एक थोड़ा सा अमेज़ा लें, इसको आप रोल की शक्ल में बना लें। इसको आप बारीक सी डोरी की शक्ल में बना लें। देखें, इस तरह आप इसको हाथ की हथेली की मदद से दबाकर इसकी लंबी सी डोरी तैयार कर ले, जो ना ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा पतली हो। इस तरह आप इसको काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें ताकि आप इसको डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब आप एक बड़ी रोटी लें, इसके आप किनारों पे हल्का सा पानी लगा लें या मैदे का अमेज़ा लगा लें। इसके दरमियान आप भुर्ती के लिए नारियल का जो हमने अमेज़ा तैयार किया था वो आप इसके दरमियान रखें और इसको आप साइडों से हाथ से दबाकर अच्छी तरह सेट कर लें। अब आप इसके किनारों को कांटे के साथ अच्छी तरह दबाकर मैच करें। इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी और ये अच्छी तरह आपस में मिल भी जाएंगे। इस मकसद के लिए आप चिमटी या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप इसको चारों साइड से दबाकर इसका डिज़ाइनिंग तैयार कर लें और दरमियान से किसी भी नोकदार चीज़ से निशान लगा लें ताकि इससे आपको फूल बनाते हुए आसानी हो। अब आप एक एक पत्ती को लें, इसके ऊपर आप अमेज़ा मैदे का जो हमने तैयार किया था वो इसकी साइड पे लगाएं और इसको आप इसके ऊपर रख के सेट करते जाएं। देखिए, एक एक पत्ती को उठाते जाएं और इसके साइड पे आटे का अमेज़ा लगाते जाएं और इसको आप दरमियान में जो सुराख किया है इसके साथ आप इसके किनारों को जोड़ के आप इसको सेट कर लें। इस तरह ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको आप गोल सी शक्ल में बना लें। 5 से 7 पत्तियां जो हैं वो आप इसके ऊपर लगाएं। एज ए रिक्वायर आप पत्तियां लगाने के बाद अब आप दरमियानी हिस्से में थोड़ा सा आटा फोल्ड करके इसका रोल बना के आप इसके ऊपर लगाएं। देखें, इससे और भी खूबसूरती में इजाफा हो चुका है। अब आप इसकी साइडों पे निचले हिस्से पे हाथ की मदद से या आप चम्मच की मदद से आटे का अमेज़ा लगाएं। इसको आप हल्का सा लगाने के बाद जो डोरी तैयार की थी इसको आप इसके गिर्द इस तरह लपेट दें। इसको आप हल्का सा दबा के सेट करें। अब आप इनको हल्का सा दबाएं ताकि ये फ्राई करते हुए अलग ना हो। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको पानी के साथ नहीं लगाना, इसको आपने आटे के अमेज़े के साथ ही लगाना है ताकि फ्राई करते हुए अलग ना हो। अब आप इन पत्तियों के ऊपर किसी भी नोकदार चीज़ से, चिमटी से या आप किसी भी चीज़ से इसके ऊपर आप इस तरह से लाइनिंग लगा लें। अगर आपके पास कोई खूबसूरत बनाने के लिए कोई आला नहीं है तो आप छुरी को उल्टा करके इससे आप आसानी से ये डिज़ाइनिंग जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप डोरी के ऊपर भी हल्का हल्का इसको दबाकर इसके कट लगा लें। इस तरह आप देखें कितना अच्छा बेहतरीन डिज़ाइनिंग के साथ पीठा जो है वो तैयार हुआ है। इस तरह आप बाकी सारे भी तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद आप 1
साइड पर रखें। आप देखें ये कितने अच्छे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन बनाने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में इससे भी ज़्यादा ये मज़े के हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को गरम करें। जब ये नॉर्मल गरम हो जाए तो आप इसको फ्राई करें। आप एक एक पीस करके भी फ्राई कर सकते हैं या आप ज़्यादा पीस भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। अब आप इसको फ्राई करें, लेकिन ख्याल है कि 1-2 मिनट तक आप इसको हरकत नहीं दें। 1 से 2 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह सेट हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर घी डालें। चम्मच के साथ आप इसके ऊपर घी डालते जाएं ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। आप देख रहे हैं इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे तो ये बेहतरीन तैयार होगा और पत्तियां जो हैं वो उतरेंगी भी नहीं। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए, निचली साइड से इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसी तरह इसको फ्राई करें। ख्याल है कि आपने एहतियात के साथ इसको फ्राई करना है ताकि ये डिज़ाइनिंग जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि हमने आटे के मेज़े का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये डिज़ाइनिंग जो है इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल अपनी असली हालत में फ्राई होगा। आप देखें ये फ्राई होके कितना अच्छा और बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल अपनी असली हालत में है, कोई भी इसकी शेप ख़राब नहीं हुई है। इसी तरह आप बाकी जो हैं स्नैक्स वो भी आप इसको इसी तरह फ्राई करें। अब मैं आपको इकट्ठे 2 से 3 स्नैक्स जो हैं वो फ्राई करके दिखाती हूँ। इस तरह से काम भी जल्द ख़त्म हो जाएगा और ये बेहतरीन तरीके से फ्राई भी होंगे। इसको आप इकट्ठे जब डालना है तो ऊपर नीचे नहीं रखना, इसको आप साथ साथ करके फ्राई करना है और इसी तरह पहले अमल की तरह इसको फ्राई करना है। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपीज़ के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। आपके कमेंट से हमें हौसला होता है, तसल्ली होती है। इससे हम आपके लिए बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी मर्ज़ी की रेसिपीज़ आपको मुहैया कर सकते हैं। आप देखें दोनों साइड से इसको पहले वाले अमर से फ्राई करने से ये पीता अब भी बिल्कुल वैसा ही फ्राई हुआ है। अगर आप इकट्ठे फ्राई करेंगे तो भी ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा स्नैक्स फ्राई करते हुए बिल्कुल बेहतरीन और अपनी असली हालत में फ्राई हुए हैं। इसी तरह आप इसको निकाल के जाली पे रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। इस तरह बाकी सारे जो हैं वो आप इनको फ्राई करें। इस रेसिपीज़ को आप घर में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। अगर आप मेहमानों को ये रेसिपीज़ बनाकर देंगे तो मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर ना रह पाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और बेहतरीन मीठा तैयार हुआ है। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना बेहतरीन तैयार हुआ है। यकीन करें कि ये खाने में इससे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप रेसिपीज़ को एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।